Hey everyone, I'm Rahul Singh Bhadoria और आज हम बात करें दलपत से. Who's Dalpat? He's the co-founder of CopperX. इससे पहले he was also the design head of Polygon where I used to work and also the co-founder of Icon Scout. Hi Dalpat, how are you? I'm good, Rahul. Thank you so much for inviting me here. My pleasure. Thank you so much for coming to Ahmedabad and sitting with us. So what are you doing currently, if you want to give an introduction to the audience? Yeah, sure. So currently I am co-founder of CopperX. I am leading product and mostly marketing there. And CopperX is kind of payment gateway company for Web3. So what we do is we build tools and services for businesses to accept crypto payment, as well as services to offer off-ramp services where they can convert their crypto to cash. Got it. So that means you're a designer who is now a founder. Yeah. The first question I would also like to know is, how did you get into Web3 design? That's a long story, but I think Web3 design, I think first of all, I think there is no any difference between Web3 and Web2. But in Web3 especially, I was introduced by one of my friend, Shakti Gop, who is not with us currently. Yeah. So in 2018, I think we organized India's first hackathon, ETH India. Right? It was like Ethereum community hackathon organized in India in Bengaluru city. So I was the part of organizer team. 6 साल पहले? Yeah, almost 6-7 साल पहले. And that was the moment like I got introduced to Web3. उससे पहले थोड़ा मतलब आइडिया था कि बिटकॉइन के मतलब बिटकॉइन जैसी चीज़ होती है, जब बिटकॉइन शायद $300 वगैरह था, लेकिन डीप नहीं गए थे कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट. सो द ब्लॉकचेन जो कोर कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो 2018 से थोड़ा मुझे समझ में आया. And then उसके बाद की जर्नी, I think let's cover your journey from that event to CopperX in short, obviously. For sure. So from that event, I think in that event the Matic founders was the sponsor. So the Matic sponsored hackathon in 2018, and all three founders came in the event: Sandeep, Anurag, JD, and luckily they find my design very nice because I had like designed entire ETH India hackathon, like all Event the design पूरा. event design, correct? Like, yeah, right. So they loved it so much. Even they know about me, about Icon Scout, my previous startup, and pretty much like they were very fully like convinced, like if we can get this person, then design problem will be solved, because in the Web3 space there was many design challenges during that time. So they convinced me to join Polygon, and I think I took 6 months of time to decide. Say yes. So I said like, let's start with kind of consultancy. I will do some work for you. We can work together for 6 months. If everything goes right, then we can decide something. Then I think in 2020 I joined Matic Network, because Polygon was a Matic Network before. So you joined Polygon, and I mean, we know what happens 2022 because I was part of it also. So you were leading design, like you were the head of designer in head of designs in Polygon. I was the first designer there. I was a solo designer, and my responsibility was to like build a team, like set up an entire design operations of like it will be the product or marketing or wherever, like organizers, if organization required any kind of designers in the team, then I am the person to solve that. Solve that problem. Yeah. You moved to CopperX right now as a design founder. How things are different than being a designer, and a lot of our people would know that Icon Scout was a design first company. Correct. Which was working on icons and everything, and was acquired from Lottie. Congratulations on that. Thanks. How now when you're working on CopperX, which is more of a
टेक साइड ऑफ थिंग्स, लाइक उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, व्हाट इज डिफरेंट एज अ डिजाइनर बिकमिंग अ फाउंडर? यार देखो, इसमें एज अ डिज़ाइनर फाउंडर चीज़ ऐसी है कि आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आपके आइडियाज़ ऐसे है कि टीम आपके आइडियाज़ से कन्विंस होती है एंड इफ़ दे वांटेड टू वर्क ऑन और योर आइडियाज़, देन टेक वॉन्ट मैटर, बिकॉज टीम में आपके पास ऐसा को फाउंडर भी होना चाहिए जो टेक को अंडरस्टैंड कर रहा हो, ठीक है। और मैं मतलब टेक बैकग्राउंड से हूँ एक्चुअली, आई हैव completed माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, so somehow I know the limitation of anything. Like if I'm thinking something, I know like how I can execute or any team can execute, what will be the limitation, where can be a time taking things that so like idea required. So ये सब अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आई मीन एनीबडी कैन बी अ फाउंडर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि यू हैव टू बी एग्जीक्यूटर। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे चीज़ें तो फिर आपका स्टार्टअप हो या फिर कुछ भी हो, आपका मतलब चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। तो लकीली माय को फाउंडर इज टेक बैकग्राउंड, तरुण मांगुकिया। तो मेरा कुछ भी आइडिया होता है तो हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो ही सेम ही लाइक ओके दिस इज पॉसिबल, वी कैन डू इट इन अ वीक तुरंत और बना के एमवीपी टेस्ट आउट। तो आइकॉन स्काउट में पूरा मतलब डिज़ाइन फाउंडर का जर्नी ऐसा ही था कि आई हैड सो मच आइडियाज़ कि चलो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, एंड तरुण इज़ लाइक ओके ये चीज़ हम ये वीक में मैंने 2 वीक में कर सकते हैं, 3 वीक में कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहा एंड लकीली लाइक इन विद इन अ 4 year वी बिल्ट गुड कंपनी आउट ऑफ स्मॉल आइडिया विच वॉज काइंड ऑफ आइकन मार्केट प्लेस। तो वो देखने में छोटा है लेकिन टर्न आउट टू बी ह्यूज, कि जो हमने 2021 में सेल भी किया और वी गॉट एक्वायर्ड, तो इट्स काइंड ऑफ फीलिंग गुड ऑन दैट पार्ट। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल वोंट नो बट ये हो रहा था 16-17 में, करेक्ट जब गुजरात में उतना डिज़ाइन का सीन था नहीं। करेक्ट So also at that time, not only starting an agency but starting a asset-based agency was like very like a company on that is very बहुत ही क्या बोलते हैं brave step. नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे आइडिया ये था कि जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मैंने मेरा जो कॉलेज का लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट है उसमें मुझे जो काम मिला था मेरी टीम में वो था कि हाउ आई कैन डिज़ाइन गुड इंटरफेस, ठीक है। तब से मेरी यूआई डिज़ाइन की जर्नी स्टार्ट हुई कि मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट था ऑटोनोमस लैंड व्हीकल, काइंड ऑफ ऑटोमेशन ऑफ कार्स, ठीक है। तो उसमें मुझे कार का डैशबोर्ड बनाना है, वो उसके अंदर मतलब कैसा इंटरफेस होगा वो सब मुझे उसके अंदर डिज़ाइन करना है। तो तब था कि आई हैव टू डिज़ाइन सम आइकन्स फॉर पार्ट ऑफ यूआई इंटरफेस। हाँ, और तब मैं सोच रहा था कि आइकन्स के लिए तब मैं एक टूल यूज़ कर रहा था, दैट वाज द नॉन प्रोजेक्ट। आई थिंक काफ़ी लोग उसको yes. जानते होंगे, बट आई थिंक द नॉन प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट आइकन मार्केट प्लेस। लेकिन उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही सॉलिड स्टाइल के है ना इसके अंदर आपको आइकन मिलेंगे। तो फ्लैट स्टाइल की जो 2012-13 में नहीं थी, तो वो वाले आइकन्स अगर मुझे ख़रीदने हैं तो देयर वाज नो एनी प्लेस, तो मुझे खुद ही आइकन्स एक्चुअली डिज़ाइन करने पड़े। और तब से मुझे था दिमाग में कि आई थिंक दोनों प्रोजेक्ट जैसा कुछ और भी बन सकता है कि जहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स के आइकन्स सेल कर सकते हैं। तो 2014-15 की बात है, जब हमारा कॉलेज का फाइनल ईयर था, तब मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक वी विल गो फुल टाइम ऑन दिस। तो मेरे कॉलेज के ही फ्रेंड्स थे, 3-4 फ्रेंड्स जिसके साथ में मैंने स्टार्ट किया। तरुण और मेरा एक और को फाउंडर है। एक्चुअली आइकन स्काउट में हम 6 को फाउंडर्स थे। सो तरुण अर्पण केम फ्रॉम अहमदाबाद, और वरुण था, मोहित था, जेमिस था, दे वर फ्रॉम माई कॉलेज मेट सूरत। यस। तो फिर हमने स्टार्ट किया 2016 में ऐसे ही। पहले तो मैं आइकन डिज़ाइनर था, मेरा दोस्त था एक्चुअली आइकन डिज़ाइनर जेमिस करके। तो हमने दोनों में मिला के ही शायद 40,000-50,000 आइकन डिज़ाइन किए थे 2016 के टाइम पे, कि जब हमने आइकन स्काउट लॉन्च किया था तब हमारी खुद की लाइब्रेरी थी। तो आई थिंक वन ऑफ द सक्सेस फैक्टर ऑन स्टार्टअप इज़ लाइक कि आप जब स्टार्ट करते हो तो आपका एज अ डिज़ाइनर को फाउंडर का
कंट्रीब्यूशन कितना है, है राइट? अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हो आपके स्टार्टअप्स में, देन यू आर द परफेक्ट पर्सन. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवन कॉपरएक्स का स्टार्टिंग के डिजाइंस यू ओनली मेड, राइट? करेक्ट. एंड देन ऑब्वियसली हायर्ड अप पूरी चीजें. मतलब अभी देखो, अभी डिज़ाइनर जो है ना, उसका माइंडसेट इज़ काइंड ऑफ प्रोडक्ट माइंडसेट. ठीक है, डिज़ाइनर ऑलवेज कीप थिंकिंग कि भाई ये वाला नया फीचर्स लॉन्च करते हैं, ये वाली चीज़ करते हैं. अगर यूएक्स भी ख़राब है तो दे विल कम अप कि यार इसको थोड़ा ठीक करते हैं, राइट? नाउ टेक इज़ काइंड ऑफ दे आर फॉलोइंग योर वे. अगर कोई भी कंपनी में, अगर कोई भी चीज़ में अभी भी ऐसा ही फ्लो चल रहा है कि डिज़ाइनर विल कम अप विथ आइडिया, दे विल बिल्ड प्रोटोटाइप, और वो अगर प्रोटोटाइप टेस्टिंग सक्सेस होता है फिर उसका टैग बनेगा, हाँ. वो सब स्टार्ट होता है, टैंक इम्प्लीमेंटेशन, राइट? तो उस हिसाब से कॉपरएक्स में भी मेरा और तरुण का आइडिया था कि हम एपीआई बेस्ड कुछ पेमेंट में बनाते हैं. और मोस्टली ऐसा था कि वेब3 में इंफ्रा साइड बहुत कुछ है, लेकिन टूलिंग साइड पे कुछ नहीं था. तो हमने सोचा कि अगर पेमेंट स्पेस जो वेब3 का अगर एक मेजर यूज केस देखे, सो दैट इज़ पेमेंट. ठीक है, तो पेमेंट में टूलिंग साइड कम है चीज़ें. तो इसमें हमने सोचा कि अगर बिजनेसेस को क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करने हैं तो उनके लिए टूलिंग अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो हम बिल्ड आउट कर सकते हैं. और अगर टूलिंग आया, प्रोडक्ट आया, तो ऑब्वियसली डिज़ाइनर कैन जंप ऑन इट, राइट? तो वो है कि आपका अगर माइंडसेट प्रोडक्ट वाला है, एंड इफ़ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कि ओके दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू आर सीइंग, एंड वो जो अपॉर्चुनिटी है उसका सॉल्यूशन ये है, देन you can win the game. You can win the game. Now, obviously, now you were designing first, right? Then now you have a team. I'm assuming, right? अभी designers की team है. Elvish was there अभी तक तो. Yeah, Elvish was right? there. Yeah. Now, how does that process work? अभी आप अगर कोई design करना होता है, right? Because you are also a designer. So one of the major issue I see happens with me and other people also is कि delegating design work where a lot of time it also comes to taste. Okay, यार ये ऐसे कर देना है. Like how does that happen? Do you wait for them to complete या बोल दो मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो रहने दो? नहीं, ये जब आप डिज़ाइनर होते हो तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है. मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि आप दूसरे डिज़ाइनर का वर्क कैसे अप्रूव करोगे, राइट? वो मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है. लेकिन उसमें ऐसा है कि आपको टीम ऐसी बिल्ड करनी है कि आपका डिज़ाइन टेस्ट और उनका डिज़ाइन टेस्ट सेम हो, अलाइन हो जाए. अगर वो अलाइन नहीं है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट. और ये चीज़ होती है जब डिज़ाइनर को फाउंडर होता है या फिर ऐसी पोजीशन पे होता है कि जहाँ पे ही हैज़ द विज़न कि भाई उसको ऐसा करवाना है या फिर ऐसा करना है. अगर डिज़ाइनर को फाउंडर नहीं है तो कोई और है उसके अंदर डिसीजन मेकर, तो वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बिल्ड होती है. अगर डिज़ाइनर को फाउंडर है तो उनके दिमाग में भी कुछ विज़न है कि भाई ऐसे दिखाना है. तो मेरे साथ इश्यू हुआ है, मतलब तो मोस्टली वही है कि मैंने मतलब जो हायरिंग की है वो काफ़ी कम हायरिंग की है. ऐसा भी नहीं है कि मैंने 4-5 डिज़ाइनर हायर किए. तो मेरा हायरिंग का एक ही है कि मैं लुकआउट करते रहता हूँ, मैं लोगों को फॉलो करते रहता हूँ और देखता हूँ कि विच आर द डिज़ाइनर्स कि जिसके साथ मुझे काम करना है. तो मेरे पास स्काउटिंग विश लिस्ट पूरा रेडी होता है. जब भी मुझे हायर करना है, माई फर्स्ट अप्रोच विल बी पिंग देम कि भाई मेरे पास है अभी एक अपॉर्चुनिटी, डू यू वांटेड टू ज्वाइन और नॉट. तो उस हिसाब से अगर मेरा फर्स्ट ही स्कैन में मेरी मोस्ट ऑफ हायरिंग हो चुकी है अभी तक की, ठीक है. इन केस मुझे ऐसा करना पड़े कि आई हैव टू पोस्ट डिज़ाइन हायरिंग ऑन पब्लिक डोमेन कि जहाँ पे पीपल विल अप्लाई, और वहाँ से आई हैव टू फिल्टर आउट ऑल द रिज्यूम्स. तो वो सब भी चीज़ें की है मैंने पॉलीगॉन के टाइम पे, क्योंकि पॉलीगॉन में डिज़ाइन टीम थोड़ी बड़ी थी, तो वहाँ पे भी वो टाइप का एग्जीक्यूशन कर दिया है. और यहाँ पे मोस्टली कॉपरएक्स में ऐसा ही था कि मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट बनानी है. तो इस टाइप के लोग भी मेरे पास थे कि जिसको मैं रीच आउट करके आई कैन कन्विंस देम. लिस्ट पहले से थी. और मेरा मतलब पता नहीं पहले से ऐसा है कि मुझे जिस लोग के साथ काम करना है उनको भी ऐसा है कि उनको भी मेरे साथ काम करना है. तो इट्स काइंड ऑफ मैच हो जाता है, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता. दैट्स गुड थिंग. Now that we are talking about hiring, right? आपने obviously CopperX फिर Polygon में भी hiring की थी. You also had one of the good designers, I remember. What are the challenges you face hiring? और अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम अ न्यू वेबसाइट डिज़ाइनर, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-2 साल हो गए हैं, और लेट्स से मेरे को ब्लॉकचेन में घुसना है, राइट?
what I should do to become more hireable, Web3. other than obviously commenting or replying on your tweets, but या सी आई थिंक वेब3 का पहले का सीन जो था और अभी का सीन जो है वो पूरा अलग है. पहले ऐसा था कि काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, प्रोटोकॉल्स बन रहे थे, और तब ऐसा था कि पीपल जस्ट वांट समवन टू डिज़ाइन बेटर इंटरफेस. ठीक है, तो उसमें से वेब 2 टू वेब 3 में मूव होना ईजी था. सो पीपल कैन, इफ सम डिज़ाइनर इज़ इन वेब 2 दे कैन ईजिली स्विच इन वेब 3. लेकिन अभी थोड़ा सीन अलग है. अभी लाइक एवरी प्रोटोकॉल वांट यूएक्स डिज़ाइनर, राइट? तो इस हिसाब से अभी अगर आप देखो तो लाइक टेक एग्जांपल ऑफ एनी बिग कंपनीज लाइक यूनिस्वैप, कॉइनबेस, के यूनिस्वैप की डिज़ाइन टीम इज़ ऑसम, राइट? ओजीज, राइट? तो उस हिसाब से अगर देखो तो अभी अगर किसी को वेब 3 में आना है, अगर उसके लिए वेब 3 नहीं आया है, तो इट्स वेरी मच चैलेंजिंग कि वो प्रोडक्ट डिज़ाइन वाला रोल ले पाए. वाई? बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, टेक वर्क्स. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन का द स्पीड ऑफ आइट्रेशन कितना है. वेब 2 जितना स्लो नहीं है. इट्स लाइक कि 6 महीने में कुछ और था, नेक्स्ट 6 महीने में कुछ और होगा, राइट? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ आइट्रेशन इज मच हायर देन वेब 2. तो वो सब चैलेंजेस में क्या होता है कि अगर डिज़ाइनर्स ने वेब 3 नहीं किया हुआ है और उसको अगर ब्लॉकचेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर काफ़ी लर्निंग को लग जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि दैट डिज़ाइनर इज़ बैड, दैट डिज़ाइनर इज़ गुड, बट दे लाइक ही और शी कैन नॉट एग्जीक्यूट एट द स्पीड वी वांटेड, राइट? अगर मुझे कोई डिज़ाइनर कॉपरएक्स के लिए हायर करवाना है तो कॉपरएक्स में भी अगर कुछ चीज़ डेवलप करवानी है तो मुझे उसको सेशंस बहुत सारे देने पड़ेंगे कि ये कैसे काम करता है, ट्रांजैक्शन कैसे होता है, वो सब. तो वो सब चैलेंजेस है अभी डिज़ाइन हायरिंग में. सो अगर स्टेप वाइज जाएं, सो द फर्स्ट वन वुड बी कि दे नीड टू बी वेब 3 नेटिव, के पहले से आना चाहिए. दे शुड बी फास्ट लर्नर्स बिकॉज थिंग्स चेंज. दे शुड बी एग्जीक्यूशन फर्स्ट. करेक्ट. कि एक्सपेरिमेंट पहले करो और सवाल बाद में. मतलब देखो वेब 3 ऐसा है ना कि आपको सीखना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा. आपको ट्रांजेक्शन्स करने पड़ेंगे, आपको मतलब क्रिप्टो रखने पड़ेंगे. अगर आप इफ़ यू थिंक कि भाई मैं सिर्फ कर लूँगा डिज़ाइन, मुझे सिर्फ यूआई बनाना है, तो नहीं होगा. दैट वॉन्ट पॉसिबल. तो वो चीज़ है. अच्छा, इसमें यू सेड राइट दैट यू स्काउट डिज़ाइनर्स जो पहले से हायर करने होते हैं, राइट? नाउ दैट ब्रिंग्स अप अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, कि देयर आर अ न्यू जनरेशन ऑफ डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइन कम करते हैं, कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं, राइट? लाइक हु आर डिज़ाइनर्स हु इफ़ दे इवन मेक वन पोस्ट दे विल क्रिएट कंटेंट अबाउट इट, राइट? नाउ देयर आर आल्सो डिज़ाइनर्स अज्यूमिंग के जो अच्छे होंगे, जो डिज़ाइन करते होंगे बट कंटेंट उतना नहीं खींचते होंगे, राइट? तो व्हेन यू स्काउट, like isn't that unfair to those designers because talent तो उनके पास भी है. तो इस content making और marketing has become one thing for designers to do. देखो अगर देखो दो चीज़ है कि अगर आप अपनी सेल्फ को शो करोगे सोशल मीडिया में तो लोग आपको नोटिस करेंगे, ठीक है? एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए. मैं तो शो ऑफ नहीं करना चाहिए वैसा बोलता हूँ, लेकिन इतना भी ना करो कि आप कहीं पे इसके लिए ना दिखे ही नहीं. थोड़ा करो कि लोगों को आपके बारे में पता चले, ठीक है? तो उसमें देखो ये जो डिज़ाइन हायरिंग वाली चीज़ है ना, इट्स नॉट अबाउट मी ओनली. आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिज़ाइन लीडर्स आर लाइक दिस, कि दे नो कि किस टाइप के लोग चाहिए उनको, राइट? अगर तुम्हें भी अगर डिज़ाइनर हायर करने हैं तो यू विल ऑल्सो स्काउट पीपल, राइट? और तुम ऐसे ही स्काउट करोगे जिसका काम आपको दिखता है. हाँ, नहीं ये तो लाइक तो वही है. अब जो दूसरी साइड जो है ना कि वो एक्चुअली आते हैं सीनियर हायरिंग में. ये देखो हायरिंग में भी देयर इज़ मल्टीपल रोल्स, जूनियर, मिड लेवल, सीनियर, राइट? और जूनियर और मिड लेवल जो है ना वो हम करते हैं कि भाई इसका काम अच्छा है, इसको ले लेते हैं. सीनियर हायरिंग है ना वो मोस्टली मुझे लगता है कि कनेक्शन थ्रू होती है प्लस एचआर थ्रू होती है, राइट? वहाँ पे ऐसा होता है कि मे बी यू डोंट नो द डिज़ाइनर, उनका काम भी आपने नहीं देखा,
बट आपके पास जब रिज्यूम्स आते हैं फ्रॉम एजेंसीज, क्योंकि मोस्टली आई थिंक सीनियर हायरिंग में हम एजेंसी प्रीफर करते हैं, राइट? क्योंकि उसमें क्या होता है कि सीनियर हायरिंग पहले तो कब चाहिए, हमें तब चाहिए जब हम ग्रोथ स्पीड में हो, मतलब ग्रोथ बहुत ग्रो कर रहे हैं, स्टेज में हो, और ग्रोथ स्टेज में है मतलब यू नीड पीपल हु कैन मैनेज मोर पीपल, राइट? स्पीड में भी चाहिए। स्पीड में भी चाहिए, इन ऑल द एग्जीक्यूशन वगैरह में चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वी नीड टू फाइंड अ पर्सन जिसने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर किसी ने 10 लोगों की टीम लीड की हुई है तो उस टाइप के बंदे को लेना पड़ेगा। तो उस टाइप का बंदा फिर सोशल मीडिया पे ट्वीट नहीं करता, तो उस टाइप के बंदे ढूंढने पड़ते हैं कि जिसने ऑलरेडी कोई और स्टार्टअप्स में 10 डिज़ाइनर्स हायर करके टीम बन के मेंटेन करी है। तो वो सब हायरिंग आई थिंक सोशल मीडिया से नहीं होती, वो सब हायरिंग कनेक्शन से होती है, और मतलब मैंने जो बोला HR एजेंसी उससे से होती है। आई थिंक ये तो हो गया फॉर डिजाइनर्स हु वांट टू गेट हायर्ड। गिव योर maybe 2 or 3 point of advice to people who want to become founders, जो designers हैं, कि what can they do to make obviously उनके chances बढ़ाने के लिए to become good founder, what's your advice for them? देखो, आई थिंक मोस्ट ऑफ डिज़ाइनर आर विजनरीज, दे नो हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, but now they have to learn which things need to be better, right? Because everything is not a design solution, right? तो एक ये है कि भाई थोड़ा बाहर निकलो, प्रॉब्लम को समझो, रियल प्रॉब्लम को, कि जिसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देन फाइंड को फाउंडर्स, टेक वाले लोगों के साथ रहो, क्योंकि अगर ये वाले सेक्टर वेब3 में जो है ना, वेब3 इज टोटल टेक ड्रिवन, ठीक है? उसमें अगर आप नॉन टेक फाउंडर हो तो नहीं आप कुछ कर पाओगे, नहीं कर सकते। लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूँ वेब टू में अगर आप टेक फाउंडर नहीं हो, इट्स वर्क्स। वेब टू में यू नीड काइंड ऑफ कि ये वाला सॉल्यूशन है और उसका एग्जीक्यूशन इस टाइप से करना है, एप्स बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो सब से। एंड थर्ड इज लाइक लर्न समथिंग अबाउट बिजनेसेस, कि बिजनेस मतलब इकोनॉमी कैसे चलती है। अगर तुम कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो वो सॉल्यूशन का पैसे देने के लिए कौन रेडी होगा, कितने लोग रेडी होंगे। तो उस हिसाब से यू कैन गेट टू नो अबाउट कि आपका जो भी सॉल्यूशन आपने बिल्ड किया हुआ है उसका मार्केट कितना है, ठीक है? ये अगर 3 चीज़ आप समझ लेते हो, एक तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सेकंड इज़ कनेक्शन विथ टेक पीपल, एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस इकोनॉमी, तो उस हिसाब से आई थिंक यू कैन बी अ को फाउंडर। और को फाउंडर वाली चीज़ ऐसी नहीं है कि लाइक यू वांटेड टू बी अ को फाउंडर, इट्स काइंड ऑफ नेचुरल, कि आपके पास कोई आइडिया है, ऑटोमेटिकली वो आइडिया अगर चमक गया तो आप उसके हिसाब से सब सीख लोगे। लेकिन इन केस अगर किसी को ऐसा है कि आई वांटेड टू बिल्ड समथिंग, सो दिस आर द 3 थिंग, कि भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कनेक्शन विद टेक, एंड थर्ड इज बिजनेस इकोनॉमी। खुद का डिजाइनर का आइडेंटिटी छोड़ना पड़ेगा। यू जस्ट कांट बी अ डिजाइनर, यू गोटा जंप इनटू टेक, लर्न, एम्पैथाइज तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिजाइनर्स करते ही हैं, बट आपको अब घुसना अगर पड़ेगा टैग पूरा। अगर टैग आपको नहीं आता ना, इट्स फाइन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड टैग कि ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई मेरे पास तो ये सब आइडियाज़ है, लेकिन वो सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि उसको टैग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वैसे भी टेक सीखना तो पड़ेगा ही उनको, क्योंकि यूजर उनके वही यूज़ कर रहे हैं। तो इवन फॉर यूएक्स पार्ट ऑफ यू लर्न कैसे उसको बेटर कर सकते हो। परफेक्ट। आई थिंक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेक, लेट्स जस्ट गो इनटू द यूएक्स साइड ऑफ थिंग्स। अभी विच इज़ वन ऑफ योर फेवरेट वेब3 ऐप टू यूज़ यूएक्स वाइज, कि जो मज़ा लगता ही नहीं है कि वेब3 यूज़ कर रहे हो? यार अगर वेब3 यूज़र मैं हूँ तो मुझे तो लगता है मैं वेब3 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बेटर है हाँ, वेब3 में अगर मैं MetaMask बेटर है। हाँ ऑब्वियसली वेब3 में मैं रिसेंटली वॉलेट शिफ्ट किया है मैंने। आई वॉज यूजिंग Zerion first, but now I am using Uniswap mobile wallet. Okay. It's new, I mean, ठीक है। so I like the Uniswap UX. Uniswap की टीम अच्छी है और उनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी है, तो recently I switched to a Uniswap mobile wallet. So right now I'm using it. उनका एयरड्रॉप आ रहा है क्या? I'm not sure. No, नहीं होगा क्योंकि Uniswap का ऑलरेडी यूनि हो चुका है। देखो भाई, मैंने भी ट्राई किया है कि कुछ ऐसे वॉलेट यूज़ करे कि जहाँ पे हमें थोड़ा एयर ड्रॉप मिले, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फ्री वॉलेट।
लेकिन हाँ मतलब इतना भी एक्टिव नहीं हूँ मैं एयरड्रॉप फार्मिंग में, तो मैंने काफ़ी मिस भी किया है। नहीं मैं अगर रिसेंट इंसिडेंट बोलूँ तो काइंड ऑफ अवेल का एयरड्रॉप अवेल मुझे मिला था, लेकिन मैंने You क्लेम didn't नहीं claim? किया। यस, तो बड़े लोग क्या क्लेम करेंगे। नहीं किया तो अब गया उस सीरियसली डिडंट क्लेम अवेल आई फॉरगॉट। अरे यार आई थिंक बहुत मुझे क्लेम विंडो सिर्फ एक वीक का था, तो आई थिंक थोड़ा क्लेम विंडो बढ़ाना चाहिए लोगों को। करो सर को फोन अनुराग को यू कैन आई थिंक इट विल बिकम लाइक नीट के थोड़ा बढ़ा दो प्लीज थोड़ा वापस चलते हैं पर्सनल वाले बिकॉज आई थिंक पीपल वुड लव टू नो हाउ डू यू स्पेंड योर डे एंड आई विल गिव सम कॉन्टेक्स्ट टू पीपल ऑल्सो दैट यू रन कॉपरएक्स you have a family and I think a year-old baby, right? Yeah. And also you are experimenting with these marketing, hiring, and also consulting because I've been working with some companies who are like, yeah, आप हो वहाँ पे consulting, right? So how does your day look like? That's a tough answer, but yeah, my days right now, like from last 1 year, like I have a baby boy. तो मॉर्निंग का शेड्यूल तो आई थिंक 11 बजे का उसमें ही जाता है। ठीक है, उसको 9 बजे तक तो मतलब वो जब सो जाता है उसके बाद एक्चुअली मेरा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरा ऑफिस टाइमिंग रहता है दोपहर में 2 बजे से रात को 8-9 बजे तक का। ठीक है, तो मोस्टली घर से मैं मॉर्निंग के कॉल्स लेता हूँ, क्योंकि हमारे अर्ली स्टैंड अप्स 11 Yeah, AM के also होते हैं। you're Dubai based, तो Yeah. time का भी सो 11-12 AM के होते हैं, तो काइंड ऑफ बिफोर लंच आई फिनिश्ड एवरीथिंग ऑन स्टैंड अप साइड, टीम क्या कर रही है और क्या आज का होगा एग्जीक्यूशन वगैरह, राइट। और आफ्टर लंच आई मोस्टली स्पेंड माई टाइम कि मेरे पास जो काम है उसको मैं कैसे आगे मतलब एग्जीक्यूट करूँ। एंड इवनिंग का मोस्टली टाइम रहता है कि हम को फाउंडर मी एंड तरुण की उसमें बिजनेस में और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ है कि जहाँ पे वी कैन ग्रो। तो हम मेरे फ्रेंड की ऑफिस है दुबई में, वहाँ से ही काम करते हैं, तो उसके साथ भी थोड़ा चिटचट हो जाती है। तो इवनिंग का टाइम मोस्टली ऐसे ही पास होता है। एंड फिर नाइट का ऐसा है कि आई कीप वॉचिंग ऑन मार्केट कि क्या चल रहा है, बुल है तो काइंड ऑफ कहाँ पे सेंटिमेंट है वो सब। तो पूरा इवनिंग का मतलब आफ्टर डिनर वाला टाइम वो सब चीज़ों में जाता है। तो मिक्स ऑफ काइंड ऑफ मैनेजमेंट, वर्क, फैमिली एंड थोड़ा मार्केट रिसर्च वगैरह। Okay, I think that's like you made it sound like कि बहुत कम काम है बस डिटेल्स नहीं मिली है बट आई नो रनिंग अ कंपनी तो होगा काम आराम से। मतलब मोस्टली इसमें ऐसा होता है कि अगर लास्ट आई मीन कॉपरएक्स में ऐसा है कि वी हैड डिज़ाइन टीम, राइट। तो इनिशियली जो मतलब डिज़ाइन जो थे एक्चुअली प्रोडक्ट के दैट आई डिड, उसके बाद वी हायर्ड अलविश। अलविश इज़ वेरी गुड डिज़ाइनर, राइट। तो अलविश ने पूरा लीड कर लिया था। बिफोर 6 मंथ और 8 मंथ ही लेफ्ट। उसके बाद वी हैवंट हायर्ड एनी डिज़ाइनर। तो अभी प्रोडक्ट में भी अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह कुछ भी नया फीचर अपडेट करना है तो आई डू। आर यू लुकिंग टू हायर अभी क्या? अभी आई मीन इन नेक्स्ट मे बी 3 or 4 month वी विल हैव सम ठीक है, तो आई जस्ट पोजीशन लेट ओपन। पीपल नो के ही विल स्टार्ट स्काउटिंग, तो स्टार्ट ट्वीटिंग। Yeah, but I already have some profiles, so I will reach out to them. सॉरी बट मोस्टली क्या होता है प्रोडक्ट प्लस मार्केटिंग। अभी कॉपरएक्स में मार्केटिंग भी अगर आप देखते हो तो मार्केटिंग इज लाइक और मार्केटिंग इज गुड। मार्केटिंग, हाँ मैं उसी पे आने वाला था। तो उसमें जो भी वीडियोस वगैरह एग्जीक्यूशन करना है उसका स्टोरी लाइन वगैरह तो वो सब भी हो I जाता है। think I've been working with Sujal Yeah. and I have to give him a shout out because the videos जो अभी आते हैं right, they are just very nice, like amazing 3D wise तो। और अभी you also launch points, तो उसका जो वीडियो आया था वो भी बहुत like that was really cool. You won't believe, but our each and every post that going from the CopperX Twitter account that is designed in-house, designed by only one person, that is 21-year-old, Kid. right? और it took maximum 1 week of time. 1 week of time. एक हमारा जो बड़ा वीडियो था वो 3 वीक लिया था, लेकिन उससे अलावा 1 वीक के ऊपर एक भी प्रोजेक्ट नहीं गया हमारा।
वीडियो वाला। तो वीडियो वाला जो भी प्रोजेक्ट्स है विद इन अ वीक हमने एग्जीक्यूट किए है, और आई थिंक देर इज़ सम मोर सरप्राइज इन कमिंग डेज। एक और प्रोजेक्ट्स पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मार्केटिंग स्टार्ट होगी। Alpha, I am saying. तो इट्स काइंड ऑफ जो मार्केटिंग गेम है वो थोड़ा अब करना पड़ेगा. अप हो रहा है हमारा. सो वी आर गोइंग टू हैव सम मोर वीडियोस. इट विल बी नॉट फुल्ली ऑन 3D बट 3D प्लस रियल फेसेस. सो लेट्स सी. Just letting know that someone can do real face content. Yeah, and by the way, we are looking for someone who are from like US or Europe, because we know we need some people who can Represent global wala Yeah. audience. Correct. I don't think वो मेरी audience है, पर ठीक है, you can say nobody's gonna. What we'll do is we'll do one last round of rapid fire. Fast questions, कम सोचना है. थोड़े clickbait questions हैं इसके अंदर, so I'm sorry. भाई पूछ लो, भाई मांग लो. Cool. Start. Okay. Perfect. What is the first Web3 app you open in the morning? It's probably Binance. You use Binance CEX. I'm not holding money on Binance, but for pricing and everything, I check by Binance, because Binance has kind of accurate market data, I would say. Because Binance is leading the market, right? So Sorry, I forgot rapid fire. जल्दी करने. Yeah. The second question is, what is one trend in Web3? It can be design, non-design, which you're excited about. It's account abstraction. Account double A. Double A. Double A. Which designer you want to collab with? कि hiring नहीं, but इसके साथ काम करना है एक बार. Other than me, obviously. I would say Saptashi from Swiggy. Oh, something nice. That is doable. Yeah, I that mean, is we'll good. talk about this later, But he is not in Web3. we'll figure out. Perfect. Any one book which you feel every designer should read? See, I'm not reader, so I cannot answer. One movie, serial, anything. I'm not watcher as well. Acha, one thing you knew, like if you wish you knew before becoming a design founder in Web3. I think business. Business side of things. You तो knew, but No, better. so still like I feel like somewhere if you know how to sell, then you can grow and grow faster. Grow faster. Yeah. Okay. I think what is right now you feel is the most innovative Web3 company? I'll give a hint कि जो देख के लगता है कि हाँ कुछ crazy किया जब भी whenever they post tech design anything but See, innovative in terms of marketing, I think Solana. Solana. Yeah. Tanmay is there, so that is given. Perfect. So keep this answer like in marketing. No, no, I'll send it to Akshay directly. Grant approve कर दो. Okay, what is the one hobby you have other than Web3 design or like इसके बाहर tech के बाहर? Cricket. दुबई में. I'm not able to find any group here, but yeah, I like play cricket. Perfect. Last question. What do you think is the next big thing in Web3 design? We had gradients, then we had those fonts. Corners. I think that went away, but corners can be one. I think UX friendly. So UX in Web3 is so much related, but not related, but it's dependent on how technology is evolving in blockchain itself. So I think once account aggregator or account abstraction is coming, then UX will be much simpler and people can design a lot better apps and dApps that they are aiming for. So I think UX is one of the main area in Web3 that it's going to be a huge, going to bring a huge change. You change. And it's depend on tech, obviously, as I said. So tech and UX is kind of go hands in hand together in साथ में. ठीक है, I think that covers most all the stuff. If you'd like to add anything or share anything, would love to know that.
feel free to ask. नहीं तारीफ करनी हो मेरी तो you can do it now but See, Rahul is amazing designer, and I said multiple time कि राहुल तुम डिज़ाइन को इतना मतलब है ना फोकस मत करो, कुछ और भी चीज़ है तुम्हारे में कि तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे हो. that's why we are doing this. तो मैं प्रॉब्ली विश करता हूँ कि थोड़ा कम्युनिटी और मार्केटिंग साइड थोड़ा राहुल लीड करे. मेरे पास भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो आई विल टॉक टू राहुल सून. Scouting वो रखी है. Perfect, Adilpat. Thank you so much for coming. It was my pleasure to have you. Yeah, Thank you.